खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दरअसल पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है। एमई ने बयान दिया है, पाक के उकसावे का जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तानी गतिविधियां उकसाने वाली हैं। पाकिस्तान की कार्रवाइयां तनाव बढ़ाने वाली हैं। पाकिस्तान का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। पाक ने गोलीबारी की है, कर्नल सोफिया ने यह बयान दिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान लगातार गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है। हालांकि जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद की गतिविधियां शुरू की गई, 22 अप्रैल को पहलगांव में जिस तरह से आतंकी हमला किया गया, उसको अंजाम दिया गया, कई निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया, निहत्तों को मौत के घाट उतारा गया। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आतंक के खिलाफ भारत ने लड़ाई छेड़ी थी और आतंकवाद के खिलाफ भारत ने कार्रवाई की। उसके बाद से लगातार भारत को उकसाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। सिविल एरियाज को अब निशाना बनाना पाकिस्तान के आतंकवादियों ने शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पर जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, पाकिस्तान की तरफ से अराजकता फैलाई जा रही है, उसका सीधा एक ही मकसद कि अब भारत पर उकसाने वाली कार्रवाई की, भारत को उकसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया कि भारत को उकसाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। Just have a few points to make in closing. First of all, as you have seen, Pakistani claims about activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. The second point that I wanted to emphasize is that Pakistan continues with its execrable and wanton campaign of targeting civilians and civilian infrastructure, especially in the states of Jammu and Kashmir and Punjab. There is also on its part a consistent attempt to sow discord between communities in India. As I said, there has been a particular focus in its targeting of civilian infrastructure and the population in Jammu and Kashmir and Punjab. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional District Development Commissioner Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar, among other places. Finally, as I said, Pakistani officials also continue to make ludicrous claims about India firing missiles towards Sri Amritsar Sahib. As I said, these lame attempts to divide India are doomed to failure. We have also seen in some of the remarks that have been shown on television that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that, again, should not be surprising. And finally,
there is this yet again completely ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan. Totally frivolous allegation, and I only want to point out that Afghan people don't need to be reminded about which country it is that has on multiple occasions in just the last 1.5 years targeted civilian populations and civilian infrastructure in Afghanistan. नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूं जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स एलओसी पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस बात का साफ तौर पर जिक्र एक बार फिर से किया गया कि सेना का मकसद किसी भी सिविल नागरिक को नुकसान पहुंचाना नहीं है। पाकिस्तान में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना भारतीय सेना का मकसद नहीं है और न ही पाकिस्तान से कोई लड़ाई झगड़ा भारत सरकार या भारतीय सेना चाहती है। बस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है और लगातार पाकिस्तान भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है और अब सिविल एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह से कई जगहों को निशाना बनाया गया, कुछ लोगों को क्षति भी पहुंची है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं और ऐसे में पाकिस्तानी गतिविधियां लगातार उकसाने वाली है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा बयान, पाकिस्तान ने बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान का रवैया गैर जिम्मेदाराना। हालांकि भारत अभी भी लड़ाई करने के पक्ष में नहीं है। पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर भारत की तरफ से कार्रवाई जरूर की गई, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान लगातार कल देर शाम से भारत पर हमले करने की कोशिश कर रहा है। कई जगहों को टारगेट किया गया और वो जगह ऐसी जहां पर नागरिक आबादी है, जहां पर नागरिक बस्ती है, आम जनता रहती है, उस जगहों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और इसी के चलते भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लगातार बने हुए। प्रदीप जी, पाकिस्तान को करारा जवाब जरूर दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की गतिविधियां उकसाने वाली हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कर्नल सोफिया ने साफ किया कि भारत अभी भी लड़ाई नहीं चाहता है, लेकिन पाकिस्तान लगातार उकसाने की कोशिश कर रहा है। देखिए बिल्कुल, और भारत की ओर से एक बार फिर से स्थिति साफ की गई है। जिस तरीके से तनाव बना है, भारत ने उसका जोरदार जवाब दिया है। भारत के प्रतिष्ठानों पर और जो अलग अलग जगह पर टारगेट कर यहाँ पर हिट करने की कोशिश की गई है, तो जरूर है कि इसको जोरदार जवाब देते हुए भारतीय सेना नजर आई है। और इसी को लेकर विदेश मंत्रालय की ओर से विदेश सचिव जो विक्रम मिश्री और इसके अलावा जो सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जानकारी दी गई, कर्नल सोफिया कुरैशी की ओर से जानकारी दी गई कि पूरे पश्चिमी मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां पाकिस्तान ने जारी रखी हैं। UCAV ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन, लाइटनिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग किया गया है और भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाए जाने की कोशिश की गई। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलीबारी की गई। ये बयान में कहा गया, साथ ये भी कहा गया कि श्रीनगर के नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया, ये बयान आया है। साथ ये भी कहा गया कि वायुसेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण और पर्सनल को हानि पहुंचाई गई है, यानी कुछ कैजुअलिटीज हुई है, ये माना गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना बनाया, जिसमें उनके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति जो है फिर से उजागर हुई है। साथ ही पाकिस्तान द्वारा जो सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित और सुनियोजित जवाबी हमले के टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रडार साइट और हथियार भंडार को चुन कर निशाना बनाया गया। ये कहा गया है। इसमें रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमिया खान, सुखपुर और पश्चिमी स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक लॉन्च की गई है। सटीक हथियारों और लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए हैं। कसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए हैं। तो काफी यहाँ पर एक बड़ा टारगेट भारत ने यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ चलाया, जिसमें एक बार फिर से बता दूं कि इसमें जो पाकिस्तान के हथियार भंडार हैं उनको टारगेट किया गया, रडार साइट को टारगेट किया गया, टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनको टारगेट किया गया, ताकि पाकिस्तान को एक जवाबी वार दिया जा सके। इसमें रफीकी, मुरीद और चकलाला, रहमिया खान, सुखपुर, पश्चिमी स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक लॉन्च की गई और इसमें लड़ाकू जेट का भी इस्तेमाल हुआ है, सटीक हथियारों से इस्तेमाल किया गया। साथ ही कसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किया गया है। और इन कार्रवाई के दौरान भारत ने कम से कम
कोलेटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की है। चिंता का विषय ये है कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया है ताकि वो अपनी गतिविधियां छुपा सके और ऐसे चालों से भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया गया है। ये जानकारी मिली है। साथ ही ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लिया है जिसमें कि वो पारंगत है। आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ और सिरसा के हवाई अड्डे, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस और डेरागिरी के तोपखाना पोजीशन और चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो के नष्ट करने के झूठे दावे किए गए, सोशल मीडिया पर फैलाए गए। भारत उन फॉल्स नैरेटिव्स का पूर्णतः खंडन करता है। ये बिल्कुल खारिज किया गया है और उसके बाद तस्वीरें भी साझा की गई हैं जो इन देश से जुड़ी हुई हैं जिसमें ये संचालन कर रहे हैं। तो नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ की है, भारी तोपखाने से गोलाबारी के प्रयास किए हैं। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोटार और हल्के हथियार से भीषण गोलाबारी जारी रही है और भारतीय सेना ने प्रभावी और तुलनात्मक जो प्रत्युत्तर है उचित तौर पर वो पाकिस्तान सेना को दिया है जिसमें पाकिस्तान सेना को भारी क्षति हुई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में जो सैनिकों की डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ती हुई दिख रही है। ये एक बड़ा बयान है जो भारत की ओर से दिया गया है कि पाकिस्तानी सेना की जो अग्रिम क्षेत्र हैं वहां पर सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दिखाती है। साथ ही भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है और अभी तक सभी जो सफलतापूर्ण कार्रवाई है उनका प्रभावी ढंग से सामना किया गया है, उपयुक्त जवाब दिया गया है और साथ ही ये आगाह किया गया है पाकिस्तान को कि भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वो तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। और साथ ही इस दौरान इंडियन आर्मी के वेपन्स LOC पर जो पाकिस्तान के एसेट्स को ध्वस्त कर रहे हैं वो भी दिखाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बयान भारत की ओर से और ये पूरे ऑपरेशन को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो सामने आया है जिसमें जानकारी दी गई है कि कैसे पाकिस्तान एक झूठा नैरेटिव बना रहा है लेकिन भारतीय क्षेत्र में भारतीय सेना वायु रक्षा प्रणाली पूर्णतः सक्षम रही है। अपने पूरे जो आयुध भंडार, अलग अलग बेस जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और पाकिस्तान के दावे को बेबुनियाद बताते हुए भारत की ओर से जोरदार प्रत्युत्तर दिया जा रहा है, जवाबी कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये कार्रवाई लगातार जारी है। तो पाकिस्तान को आगाह करते हुए भारत ने एक बार फिर दोहराया कि वो तनाव नहीं चाहते लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने कार्रवाई की है उसका जवाबी वार भारत की ओर से किया जा रहा है।